Our first lecture of C language basics, in which we are trying to cover these topics. Okay, so first we try to understand the basic things about C languages. After that, we will try to do some code and the next things that are useful for you. Okay. So the book we refer in this course is actually the letter C, and its writer is Yashwant Kanedkar, and this book is very helpful for all of you, and its PDF is already sent in group. Okay, you can download from there and try to read it out completely so that you can understand the things that are missing out in this session. Okay, so let's start it. So today we are trying to cover the topics is basically first one is what is C language, second is C character set, and third we write our first C program, and after that we will understand the process of compilation and execution. Then we understand how to receive input from user in C language. After that we will try to understand C instructions, and after that overall I will tell you complete summary of this lecture. So let's start from the first. Okay, so let's try to understand the basic of C. तो C के बारे में बेसिक के बारे में हम अपन जान लेते हैं व्हाट इज C बेसिकली. तो C का क्या है. सी को जो इन्वेंट किया था, तो इसको मतलब सी जो बनाई गई इसको डिजाइन किया है या इसको जो इन्वेंट किया है वो किया है हमारे डेनिस रिची सर ने. ओके, डेनिस रिची ये सर है हमारे. ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सी लैंग्वेज को इन्वेंट किया है. सो द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द सी लैंग्वेज इज it is designed and organized by Dennis Ritchie. And the next thing is C is very basic language to understand all the programming languages. So first thing is C is very basic language. If you want to learn more comfortable languages like Java, Python, and C++, then first you will have to start with C language, I think. Okay, so this is the basic about C. I try to understand that there is invention and so many other things. We will not try to tell you the more history about C. Go through the book and try to read it out. Okay, so next thing I will tell you what is the basic of C. So all of you are speaking and reading English more and more. So the if you are trying to, I will tell you this is the English language. Okay, this is the English. The basic unit of English language is letter. Okay, letter, or you can tell it say it as alphabet. Okay, alphabet is the basic unit of English language. Second one is your words, means with the combinations of letter you will form words. With the words combination, or say if you combine the words, then you will form the sentences. Okay, after that if we combine the sentences, then this will form the paragraphs. Okay, so it is the main structure of C language, sorry, English language. Now we will try to understand same as for C language. तो what is in C letters, मतलब सी के अंदर लेटर्स क्या होते हैं. जैसे इंग्लिश के लिए मैंने बताया लेटर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं. तो एक्चुअली सी लैंग्वेज में भी इसका सेम अगर हम वो करना चाहें, पैटर्न समझना चाहें, तो सी लैंग्वेज के अंदर हमारे लेटर्स क्या होंगे. हम सबसे पहले ये समझते हैं. सी लैंग्वेज के अंदर हमारा सबसे पहले आते हैं अल्फाबेट्स. ओके, डिजिट्स. नेक्स्ट वन इज योर स्पेशल सिंबल्स. दैट इज द बेसिक all.
points about the letter which is used in C language. Now the combination of these alphabet, digit and special words what make in C language. Then it makes in C language the constants, variables, and the next one is your keywords. These are forms with the combinations of the letters which is used in C language. Now, if we combine these constant, variable and keywords, what we make? Basically, we make instructions. Okay. So these instructions are actually in C language are same as in that sentence like in English. Okay. Now, with the combination of these instructions, what we make? We make the complete program. Okay, complete program. Okay, so this is the basic structure of a language. We will try to understand it. Okay, now understand some basic concepts. So we will understand that the combinations of all these things makes a program. So basically we try to know that what is program. Program is basically a a combination of set of instructions. Okay, तो एक सी का प्रोग्राम क्या होता है? बेसिकली वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जब कई सारे हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या कर रहे होते हैं, हम एक साथ कंबाइन करके एक पूरा कोड लिखते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। तो दिस इज द बेसिक about the program that we try to understand. Now we will first try to understand about the constant, variables and keywords. From there we will start it. Okay, so let's move to the next slide. Sorry. Yes, so let's start from the constants, variables and keywords. We will first understand these three. Okay, and keywords. तो कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो कांस्टेंट को बेसिकली क्या कहते हैं? अगर कांस्टेंट आपसे पूछा जाए तो आप हिंदी में क्या बोलेंगे कांस्टेंट को, कि कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है नियत। ओके, हिंदी में क्या बोलते हैं? नियत, जो चीज चेंज ना हो, दैट डजंट चेंज। ओके, तो वो चीज हमारी कहलाती है कांस्टेंट। तो सेम ऐसे ही है, अगर कोई एक ऐसी चीज है जो किसी एक चीज को स्टोर किए हुए है, उसको बदले ना। ठीक है, जैसे अगर आप लोगों को हम बताएं कि आपको क्या दिया गया, एक बकेट दी गई। ओके, बकेट के अंदर पानी भर दिया गया। ठीक है, तो ये बकेट क्या हो जाए? कांस्टेंट है अगर। ओके, this bucket is actually a constant, then it will not change its value which is water. Okay, तो बकेट के अंदर सिर्फ पानी के सिवा कुछ भी और बकेट चेंज ही नहीं करेगा अपनी वैल्यू को, तो क्या कहलाता है? कांस्टेंट्स कहलाता है। ठीक है, अब दूसरा उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है? वेरिएबल। तो वेरिएबल किससे बना है? हमारे वर्ड वेरी से बना है। तो वेरी क्या होता है हमारा? जो चीज चेंज हो जाए, दैट चेंज। ओके, तो वेरिएबल बेसिकली है यही कि जिसकी वैल्यू को हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, वो हमारा एक्चुअल में क्या होता है? वेरिएबल होता है। नेक्स्ट इज आवर कीवर्ड। तो कीवर्ड को हम जब अभी कंपाइलर समझा रहे होंगे, कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन प्रोसेस, उस टाइम पे हम समझाएंगे तो जो ज्यादा सही रहेगा। ओके, तो तब तक के लिए इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट अपन अब देखते हैं कि स्लाइड में, अच्छा जैसे कुछ नियम्स भी हैं, जैसे कांस्टेंट को बनाने के लिए हमारे कुछ नियम्स हैं, वो भी देख लेते हैं। एक के मैं बता दूंगा, बाकी के आप बुक से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, वो चीज सही नहीं है अपन के हिसाब से। ओके, तो कांस्टेंट का मैं आपको बता दे रहा हूँ, कांस्टेंट के लिए क्या होना चाहिए। वो ए रियल कांस्टेंट, नियम भी लिखा देता हूँ साथ में। ए रियल कांस्टेंट मस्ट हैव एट लीस्ट वन डिजिट।
must have at least one digit. Okay. The next is the it must have it must have decimal मस्ट हैव डेसिमल पॉइंट। ये वाला जो है ये होता है रियल कॉन्स्टेंट्स के लिए। ओके। ये जो नियम है, क्योंकि हम सारे नियम एक साथ कंपाइल करके बता रहे हैं, इसलिए जो नियम अलग अलग होते जाएंगे उनको मैं बताता जाऊंगा। तो ये जो नियम होते हैं ये हमारे बेसिकली होते हैं रियल जो कांस्टेंट बना रहे होंगे उनके लिए होता है। ठीक। उसके बाद अगर आपका इंटीजर कांस्टेंट है तो उसमें सेम यही नियम हो जाएगा, इट मस्ट नॉट हैव ए डेसिमल पॉइंट। ठीक है। अब उसके बाद एक चीज और देख लेते हैं अपन, और इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव ठीक है। तो ये इसका एक और बेसिक नियम हो गया। ठीक। और एक चीज और होती है इसमें जो मेन है, कॉमास ब्लैंक्स आर नॉट अलाउड or not allowed. So these are basic rules for performing or for making an constant. Okay. एक कांस्टेंट को बनाने के लिए हम लोगों को क्या होना चाहिए, इन चीजों का ध्यान रखना है कि ये चीजें, ये जितने भी रूल्स हैं वो हमारे फॉलो होने चाहिए। ठीक है। तो ये हो गई हमारी कांस्टेंट की बात है। नेक्स्ट चीज अपन देख लेते हैं कि कांस्टेंट होते कितने टाइप के हैं। ठीक है। तो सी कांस्टेंट हमारे होते हैं, सॉरी जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके। तो सी कांस्टेंट अपन देख लेते हैं कि होते कितने टाइप के हैं सी कांस्टेंट। तो सी कांस्टेंट, ओके, तो सी कांस्टेंट इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज योर प्राइमरी कांस्टेंट। ओके। फर्स्ट वन इज योर प्राइमरी कांस्टेंट, सेकेंड वन इज योर सेकेंडरी कांस्टेंट। ओके। सेकेंडरी कांस्टेंट। Now, what is the basic parts of primary constant? So it is, first one is integer constant. Okay. Second one is your, sorry, second one is your integer के बाद आता है आपका float constant, सॉरी float नहीं, इसको बोलते हैं रियल कांस्टेंट, सॉरी इसको ऐसे बोल लेते हैं रियल कांस्टेंट, वो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि अभी मैंने रियल की बात की थी, तो अगर रियल के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ तो वो ज़्यादा सही है, क्योंकि ऐसे बोल सकते हैं रियल कांस्टेंट, या उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट। ओके। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी कांस्टेंट? तो सेकेंडरी में बेसिकली आते हैं आपके एरे, ओके, पॉइंटर, ठीक है, स्ट्रक्चर, okay, structure, and the some others like enum and so other. So these are the basic that I will tell you now. अब हम समझते हैं कि जो बेसिक में वेरिएबल्स में अपन ने देखा था, तो सेम रूल्स अप्रॉक्स अप्रॉक्स आपके मिल जाते हैं वेरिएबल्स के लिए। कुछ रूल्स अलग आपके हो जाएंगे, उनको मैं बता दूंगा आपको कि जो सी वेरिएबल्स हैं उनके नाम, मतलब उनको परफॉर्म करने के लिए, उनको बनाने के लिए आपको जो बेसिक डिफरेंस आपका लग रहा होगा वो क्या होगा। तो कुछ देख लेते हैं हम अपनी तरफ से कि जो रूल्स फॉर रूल्स फॉर मेकिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल नेम, कुछ हम बता देते हैं आपको, बाकी आप लोग बुक से देख लीजिएगा, क्योंकि फिर अगर हम सारा अगर लिखा रहे होंगे तो उसमें फिर टाइम लग रहा होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं वेरिएबल में भी कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ 1 to 31 अल्फाबेट डिजिट्स। अब 31 अल्फाबेट डिजिट इसमें आपके क्या आते हैं, जैसे आपको बता दूं, आपके हमारे हो गए 26, तो आपके अल्फाबेट सी ए होते हैं 1 to A, सॉरी A to Z तक। उसके बाद आपके नंबर्स आते हैं, ठीक है, 0 to 9, ये भी इसी में आप काउंट करेंगे। ओके। तो ये इसका बेसिक एक ये रूल है। दूसरा रूल आपका क्या है कि द फर्स्ट कैरेक्टर इन द वेरिएबल नेम
मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर। मतलब जैसे आप वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं, अब तो आप वेरिएबल का नाम ऐसे नहीं बना सकते हैं वन, जैसे आपने बना दिया वन अमन। This is not a variable name. It is not allowed in C language. Okay. You have, if you want to make a variable name, either it will start with underscore Aman. Okay. Or it will start with Aman. ठीक, तो these are allowed. But if you want to use the numbers inside the variables, then you can use it. But the basic condition is you will not have to use it in first. Okay, जो पहला आपका वेरिएबल का वो होगा लेटर, वो या तो अल्फाबेट होना चाहिए, मतलब कि ए टू जेड के बीच में होना चाहिए, या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। उसके सिवा आप लोग पहला लेटर कोई भी वेरिएबल का नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक इसके लिए कि अगर आपको कोई वेरिएबल का नेम बनाना है तो आप लोगों को ऐसे बनाना है। ठीक है, और इसके सिवा एक चीज और है, ये अंडर स्कोर के सिवा आप लोग कोई और वेरिएबल में स्पेशल सिंबल नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे अंडर स्कोर के सिवा ये वाला सिंबल आप नहीं यूज कर सकते, मतलब सिर्फ आप लोग स्पेशल सिंबल के अंदर अंडर स्कोर ही अलाउ है, ओनली अंडर स्कोर इज अलाउड इन इट। ओके, अंडर स्कोर is allowed in it. Okay, now next thing we will see is that what is the basic, we try to cover it. Okay, so first understand it. Now what is the C keywords? Now we will first understand what is C keywords. तो ऐसे समझ लो C keywords के बारे में आपको ऐसे सबसे पहले तो याद रखना है। C keywords के बारे में बता दूं मैं आपको, जो चीज को आप वेरिएबल नेम नहीं बना सकते हैं, दैट इज एक्चुअली कीवर्ड। ठीक है, सीधी बात है। जितने आपके वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे रिजर्व वर्ड हैं जिनको आप की वेरिएबल नेम नहीं बना सकते हैं, वो एक्चुअल में कीवर्ड्स हैं आपके। तो टोटल सी लैंग्वेज में, तो इसकी डेफिनेशन अगर आपको लिखने को दी जाए तो क्या लिखेंगे? देयर आर सम रिजर्व वर्ड्स, सम रिजर्व्ड words, there are some reserved words which are already known by compiler. Okay, अभी बताऊंगा कंपाइलर क्या होता है, already known by compiler. Okay, that is known as the C keywords. तो C लैंग्वेज में जो टोटल कीवर्ड्स हैं वो हमारे कितने हैं? 32 कीवर्ड्स हैं। ओके, उसमें से जैसे कुछ के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एंट है, फ्लोट है आपका, ठीक है, ऑटो है, और साथ में स्ट्रक्ट है। तो ऐसे कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको आप वेरिएबल नेम्स में बना नहीं सकते। टोटल 32 हैं। इनकी लिस्ट आप लोग को मैंने बुक की पीडीएफ से आप लोग चेक कर सकते हैं। बाकी अगर चाहिए होगा तो मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, वो आप लोग वहां से देख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट थिंग वी विल कवर इज द, we try to understand first thing, that is basically, yes, now, okay, our first C program. Okay, our first C program, चलो लिखते हैं अपना पहला C का प्रोग्राम जो है। सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि बेसिक उसमें है क्या। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अपन आपको एक सीधे कोड लिख के दिखाते हैं। ठीक है, आते हैं अपन लोग अपनी स्क्रीन के अंदर, और सबसे पहले एक नया फोल्डर आपको बनाना है, और उसके अंदर हम लोग उसको VS कोड में खोल रहे होंगे, और फिर आपको बताते हैं। न्यू फोल्डर हमने बना लिया। ओके, और इसको खोलेंगे हम लोग VS कोड से। ओके, और जो, अगर आपको ये जानना है कि कोड हम लोग कहाँ करें, कहाँ से यूज करें, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, वहां से आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए प्लीज वेट कर लीजिए थोड़ा सा। हम्म, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है चीजें। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट कोड, दैट इज, now make a folder in C language, sorry, VS code, that is index.c, index.c.
make a folder, sorry, just wait 1 minute, index डॉट सी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपन लोग लिखते हैं क्या, हैशटैग हैज इंक्लूड, सॉरी, हैज इंक्लूड stdio डॉट एच। ओके, सॉरी, यहाँ पे एन छूट गया है, has include stdio dot h. Now we will call a main function, and simply we will try to print a statement that is hello world. Okay, hello world. Okay, we will write it hello world. Okay, now we will run it and see what is the output of this program. This is our first code of C language. Okay, रिटर्न जीरो किया, इसको सिंपली हम लोग रन करेंगे और देखते हैं कि क्या हमारा रन करने के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, इसको ऊपर करते हैं, ये देखो हमारा हेलो वर्ल्ड यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट हो गया। ठीक है, तो अब अपन लोग चलते हैं और देखते हैं कि बेसिकली इसमें हुआ क्या, क्या इसकी प्रोसेस हुई टोटल, अपन वहां से जाके समझते हैं। सो हमने लिखा क्या था कोड, एक बार दोबारा से यहाँ पे लिख के देख लेते हैं क्योंकि जरूरी है। हैज इंक्लूड stdio डॉट एच, stdio डॉट एच, उसके बाद हैज, सॉरी, इंट मेन, इंट मेन। ओके, और इसके अंदर सिंपली हमने लिखा था printf हेलो वर्ल्ड, और वही हम दोबारा से लिखे ले रहे हैं हेलो वर्ल्ड। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या, क्या प्रोसेस हुई टोटल, ये हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रिटर्न जीरो डाल देते हैं क्योंकि हमने इंट मेन लिया है, तो उसे रिटर्न को जीरो, रिटर्न जीरो स्टेटमेंट आपको साथ में यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसमें ये हैज क्या है, एक एक करके हम लोग टर्म समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हैज इसमें जो होता है, तो हैज को बोलते हैं हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। ओके, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। नेक्स्ट वन इज योर stdio.h, क्या है, इंक्लूड क्या करता है, एक हेडर फाइल को इसमें जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंक्लूड का। stdio.h क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ओके, नाउ इनसाइड आपका सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होता है, सबसे बेसिक जो जानकारी है ये आपको समझनी पड़ेगी कि सी का एग्जीक्यूशन कहाँ पर से शुरू होता है। तो सी का जो एग्जीक्यूशन है, इंट मेन जहां पे आपने लिखा है इसके बाद से शुरू होता है। ठीक है, यहां से आपका प्रोग्राम क्या होता है, एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। तो ये इसके अंदर की बेसिक जो वो है, वो यही है कि जो आपका इंट मेन फंक्शन है, इसके अंदर से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। नाउ what will do this printf, printf will simply as it is print the statement that will you write inside the inverted commas. Okay, तो printf के अंदर, printf में क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी चीज आप लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट कर देगा। हेलो वर्ड की जगह आप अगर लिख देते, मान लिया जैसे मैंने लिख दिया कोड फॉर मोर, तो ये एज इट इज इसको प्रिंट कर रहा होगा। ओके, नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट इज रिटर्न जीरो। व्हाट विल दिस रिटर्न जीरो, ये बेसिकली बता ये रहा है कि आपका जो मेन फंक्शन है इसका रिटर्न रिटर्न भी एक होगा। मतलब अगर इसके जगह पे हम लोग लिख रहे होते void में, इंट मेन की जगह पर अगर void मेन लिखेंगे तो void मेन का कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होता है। ओके, तो void मेन हमारा नो रिटर्न वैल्यू होती है void मेन में। ओके, इंट मेन हमारा वैल्यू रिटर्न करता है, ये बेसिक इसका डिफरेंस है। अब ये क्या चीज है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसको अब हम लोग बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ओके, स्टेटमेंट टर्मिनेटर है बेसिकली ये। ठीक है,
सेमीकॉलन बेसिकली क्या होता है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये चीज हम लोग समझ लिए, ये बेसिक इसका डिफरेंस है इसके अंदर। तो अब हम अपन लोग नेक्स्ट चीज जो अपन लोग समझ रहे होंगे, सी प्रोग्राम के बारे में तो देख लिए कि सी प्रोग्राम होता कैसे। अब इसको कंपाइल और जो इसका एग्जीक्यूशन टाइम है, इसमें क्या किया जा रहा होगा, सबसे पहले ये चीज हम अपन समझते हैं। नाउ तो सबसे पहले क्या होगी, इसको जब हम लोग इस कोड को लिखेंगे तो सबसे पहले कंपाइल होगा। तो कंपाइल बेसिकली क्या होता है, एक हाई लेवल लैंग्वेज को एक लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफर करने को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाइलेशन कहते हैं। ठीक है, एक हाई लेवल लैंग्वेज को एक लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफर करना हमारा कंपाइलेशन होता है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें कंपाइल करेंगे जब, तो कंपाइल में क्या होता है, एक डॉट एक्स, आपने डॉट सी नाम से फाइल बनाई है, जैसे आपने अभी ये मैंने क्या किया था, सॉरी इसको नेक्स्ट पेज पे मैं बताता हूँ चल के। जैसे आपने क्या किया यहाँ पे, अब आते हैं नेक्स्ट पेज खोल लेते हैं। जैसे हमने फाइल बनाई, कोई फाइल इंडेक्स डॉट सी नाम से, तो कंपाइल करने के बाद ये एक नेक्स्ट फाइल बनाता है, वो हमारी फाइल होती है इंडेक्स डॉट ई एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। तो ठीक है, ठीक है, तो ये दो फाइल्स जब आप जो बना के दे रहे होंगे वो होगी डॉट सी नाम से, एक्सटेंशन से आप सेव करेंगे। जो कंपाइल के बाद फाइल बनेगी वो किस नाम से होगी, डॉट ई नाम से होगी। तो दो फाइल्स आपकी बनती हैं। एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है वो हमारी कौन सी होती है, इसको ऐसे बोल सकते हैं डॉट ई एग्जीक्यूटेबल फाइल है ये, इंडेक्स डॉट ई नाम की। ठीक है, और इसको क्या हम लोग कह सकते हैं, द ये मशीन लैंग्वेज जो होती है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं मशीन लैंग्वेज क्या करती है। मशीन लैंग्वेज, तो मशीन लैंग्वेज बेसिकली ये क्या है कि जो प्रोग्राम है उसको कंप्यूटर की भाषा में ट्रांसफर करती है। कंप्यूटर उसको कैसे समझेगा, कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको ट्रांसफर करना, कंप्यूटर उस स्टेटमेंट को कैसे यूज करेगा। आपने उसको बोला कि मुझे ये करना है, ये प्रिंट कर दो, जैसे हेलो वर्ड आपने बोला प्रिंट कर दो, तो हेलो वर्ड वो कैसे प्रिंट करेगा, ये चीज वो कैसे समझेगा कि क्या करना है मुझे, क्योंकि आपने अपनी लैंग्वेज में उसको बोला है। और कंप्यूटर की जो लैंग्वेज क्या है, वो अपनी लैंग्वेज में पहले इसको ट्रांसफर करेगा, उसको समझेगा, उसके बाद उसको क्या करेगा, आपको जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है आपको वो रिटर्न कर रहा होगा। तो ये बेसिक इसका ये है कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन का प्रोसेस। आप लोग होप आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट चीज अपन देखते हैं, क्या चीज है नेक्स्ट, आप लोग अब समझ लेते हैं इनपुट कैसे लेते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू रिसीव इनपुट फ्रॉम यूजर। रिसीविंग, रिसीविंग इनपुट, तो इनपुट लेने के लिए बेसिकली क्या है, हम लोग स्कैनएफ फंक्शन का यूज करते हैं। ओके, स्कैनएफ, ओके, स्कैनएफ स्कैन इसका स्ट्रक्चर ये होता है, जैसे अगर आप लोगों को कोई भी जैसे एक वेरिएबल आपने बनाया ए, उसकी वैल्यू लेनी है, तो उसकी वैल्यू आप लोग ऐसे ले रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे इंटीजर वेरिएबल है तो उसके लिए आप लोग परसेंट डी यूज करेंगे अगर, ठीक है, ये इंटीजर के लिए है। ठीक है, दूसरा अगर आपको फ्लोट है तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो परसेंट एफ फ्लोट के लिए। और अगर परसेंट सी है, परसेंट सी किस लिए यूज होता है, कैरेक्टर के लिए। ठीक है, तो ये तीनों ऐसे यूज करना है। उसके बाद स्कैनफ फंक्शन लिखेंगे, उसके अंदर सेम ऐसे आपको लिखना है, और आप लोग यूजर से इनपुट ले पा रहे होंगे। ठीक है, अब ये बेसिकली समझ लेते हैं कि इसके अंदर जब स्कैनफ के अंदर हम लोग ले रहे हैं इनपुट, तो उसको कैसे मतलब कोड के अंदर कैसे यूज करना है, वो चीज अभी हम नेक्स्ट उसमें समझ रहेंगे। जैसे एक प्रोग्राम लिखते हैं अपन, ऐसे समझ में नहीं आया, मजा नहीं आ रही होगी, प्रोग्राम लिखते हैं। चलो करते हैं प्रोग्राम। चलो एक प्रोग्राम लेते हैं, यूजर से इनपुट लेना है, उसको एज इट इज प्रिंट कर देना है। ठीक है, तो राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू रिसीव a an input from the user, from the user, and print its value. Okay, print its value.
तो अपन ने क्या किया, एक वैल्यू ले ली। सबसे पहले एक हम लोग वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग पहले यूजर से इनपुट लेके वैल्यू ले रहे होंगे, उसके बाद उसको सिंपली अपन लोग प्रिंट करा रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और लिखते हैं कोड। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। तो हैश इंक्लूड सबसे पहले stdio.h। नाउ सेकेंड वन इज हैज इंक्लूड कोनियो डॉट। कोनियो डॉट एच बेसिकली क्या होता है ये भी बता दूं, क्योंकि अभी नहीं तो कुछ लोग ग्रुप पे क्वेश्चन कर रहे होंगे कोनियो डॉट एच क्यों सर हमारे कॉलेज में यूज करा रहे होते हैं, क्या यूज है इसका। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कोनियो डॉट एच होता क्या है। ये होती है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो ये बेसिकली क्या है, कहाँ यूज होती है, जो एम एस डॉस के कंपाइलर्स हैं उसके अंदर इसको हम लोग यूज कर रहे होते हैं। बाकी के जो मॉडर्न कंपाइलर्स हैं उनके अंदर इसका यूज नहीं हो रहा होता है। तो इसको आप लोग उन्हीं में यूज करें, जैसे अभी मैंने वीएस कोड यूज किया था तो उसके अंदर इसको यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। नाउ अब आगे अपना कोड लिखते हैं अपन लोग। इंट मेन, सबसे पहले फंक्शन बनाए। फंक्शन के अंदर क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल अपन बना लिए इंटीजर। इंटीजर वेरिएबल एक्स। ठीक है। अब सबसे पहले हम कह रहे होंगे कि हमें एक्स की वैल्यू दो, प्रिंट एफ गिव वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, गिव वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, सबसे पहले ये इसको हम लोग कह रहे होंगे कि x की वैल्यू हमें दो। तो x की वैल्यू हम लोग ले कैसे रहे होंगे, x की वैल्यू। तो ये इंटीजर टाइप है इसलिए परसेंट डी लगेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे इसकी वैल्यू को ले रहे होंगे। ठीक है। अब हमने यूजर से वैल्यू ले ली। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या बोलते हैं कुछ लोग अगर पूछे तो एमॉडुलो इसको बोलते हैं, और इसी को यूज करते हैं जब आपको इनपुट लेना होता है किसी किसी उसका वेरिएबल की वैल्यू को लेना है। ठीक है, तो उसके लिए इसको हम यूज करते हैं। अब हमने वैल्यू ले ली तो उसके बाद सिंपली क्या करना पड़ेगा, उसको प्रिंट कर देना है। प्रिंट एफ, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू परसेंट डी। ओके, अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, सिंपली प्रिंट करा देंगे। ठीक है। परसेंट डी की वैल्यू क्या होगी, परसेंट डी है क्या, किस लिए यूज हो रहा है, ये सिर्फ बताने के लिए आपको कॉमा के बाहर इसको लिखना पड़ेगा। ओके, परसेंट डी ये वाला किस चीज का है, ये समझाने के लिए कि एक्स हमारा है क्या, उसकी क्या वैल्यू वो होल्ड कर रहा है, उसके लिए हमको इसको बाहर बताना पड़ता है कि ये परसेंट डी इसके लिए है, ये परसेंट डी इसके लिए है, सीरियली आपको बताना पड़ता है। ठीक, उसके बाद सिंपली हम लिख देंगे रिटर्न जीरो। बस आपका स्टेटमेंट इसको लेके एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं, इतना हम लोगों ने आज देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो है वो अपन लोग अब कल देखेंगे कि सी जो बेसिक चीजें बची हैं इसमें उनको अपन लोग अभी बाद में देख रहे होंगे थोड़े, क्योंकि अब वीडियो का लेक्चर जो है ये फिर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, उतना बड़ा करना मेरा इंटेंशन नहीं है। तो इसको यहीं पे अभी एंड करेंगे ये क्लास आज की, और नेक्स्ट क्लास में आपको बता रहे होंगे हम लोग ये जो बचे वाले टॉपिक हैं सी इंस्ट्रक्शंस, इनके बारे में आपको बता रहे होंगे। तो एक बार समरी देख लेते हैं क्लास की क्या थी आज की। तो सबसे पहले हमने समझा कि सी जो है वो डेनिस रिची के द्वारा डिजाइन की गई है। सी लैंग्वेज जैसे इंग्लिश में हम लोग इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं, उनका बेसिक क्या काम होता है, उनको कैसे हम लोग यूज करते हैं, इस सब के बारे में अपन ने देखा था। ठीक है, तो ऐसे ही इसको हम लोग यूज कर रहे होते हैं। नाउ द सेकेंड थिंग वी अंडरस्टैंड अबाउट कांस्टेंट वेरिएबल्स कीवर्ड्स, व्हाट इज वेरिएबल्स, व्हाट इज द कांस्टेंट्स, how we can declare it, and the basic concepts about its declaring. We understand all these topics. Okay, this is the basic rules, we understand it already. Now we understand, we write our first C program. If you like this, then please comment it. You already write your first program in C language successfully. Okay, so this is the basic information about it, and it is your basic information, what is hash, what is stdio.h, what is printf, why we use void main, where we use int main, all things we will tell in complete video. So watch it and understand it from your own end. Now this is the basic things we all understand. So guys, this is all about this class. Next class we will try to understand more concepts, and I will give you some questions in group. So try to do it from your own. If you have any problem, then directly you can DM us and we will solve your problem. Okay guys.
Thank you guys. We will see you soon in next video.